Hello everyone, welcome you all onto the SVP online classes study channel. Today we are going to start the new chapter, that is second chapter of our syllabus, and the name of the chapter is matter around us pure. Right, in the first chapter we discussed about the matter, what are the matters, what are their types, how the matters are formed, and the states of matter were also discussed. Right, so matter is what? Anything which is having some mass and occupy some space. Right, what is matter? Anything which is having some mass and occupy space in this universe, that is called matter. Right, we discussed the properties of matter, the different properties were there. Right, and matter is supposed to form by the combination of particles. Right, these particles can be atoms, combination of particles. These particles can be atoms, ions, molecules, or compounds. Right, so matter is supposed to form by the combination of particles in different patterns or in different ratio. Okay, if a matter is formed by the combination of similar kind of particles, then we can say that the matter is pure. Right, in the simple way, what we can say that the matter is formed by the combination of particles. Right, these particles can be atoms, ions, molecules, and compounds. Right, if a matter is formed by the combination of similar kind of particles, then we can say that matter is pure. Right, and if they are not combined together by similar particles, then we can say that the matter is not pure. Right, so depending on to the combination of atoms or combination of particles, this matter can be said as pure and impure. Matter is can be said as pure and impure. It means the matter can be pure and matter can be impure. Is it clear? Right, so depending upon the combining atoms, the matter can be classified into the pure and impure. Right, so pure matter is that part of matter which is formed by the combination of similar kind of particles. It means if the similar और एक जैसे particles मैटर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे. And if the matter is formed by the similar kind of particles or not the similar kind of particles, at that time the matter is said as impure. It means जो प्योर मैटर होगी उस प्योर मैटर में सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ें प्रेजेंट होगी या फिर एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. राइट, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर H2O, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर H2O, दैट इज वाटर. इट मीन्स इफ द वाटर कंटेन्स ओनली वाटर मोलिक्यूल्स, then we can say that the water is pure, or this is the pure form of matter. Right, and impure matter is what? In which similar kind of particles are not there. It means the different properties having particles are combined together in order to form the matter. Right, that is called water. That is called impure matter. Right, this impure means the combination of two or more things is there. So these impure matters can be called as what? Mixtures. These impure matters can be called as what? Mixtures. Right, for example, if you are considering water, right, don't be confused here. I am again considering the water as an example of impure matter. Right, as an example of impure matter. Science says that only those matters are pure which are composed by the similar kind of particles. It means if in the water sample, if that water contains only water molecules, that we can say that the water is pure. Right, but if that water contains something another contaminated things, that then we can say that the water is impure. Then we can say that the water is impure. So the water that we are using, for the drinking, bathing and any other purpose, that water is not pure scientifically. That water is not pure scientifically. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. क्या साइंस कहती है कि जिनमें केवल सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वही क्या होता है? प्योर होता है. सिर्फ वही प्योर होगा. राइट, नाउ द रेन वाटर इज देयर और द डिस्टिल्ड वाटर. राइट, जितना अगर हम देखते हैं क्या डिस्टिल्ड वाटर होता है जो घर में हम यूज में लेते हैं इन्वर्टर की बैटरीज में फिल करने के लिए, जो वाटर खरीद के लेके आते हैं वो होता है डिस्टिल्ड वाटर. या फिर जो रेन वाटर होता है बिफोर कमिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, या फिर रेन वाटर, दीज वाटर आर कंसिडर्ड एज प्योर वाटर बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय ओनली सिमिलर काइंड ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स. राइट, या फिर डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है अगर हम कोई पानी ले रहे हैं, उस पानी को गर्म कर रहे हैं
राइट, गर्म करते हैं तो पानी की वेपर्स फॉर्म होती है, उन वेपर्स को वापस कंडेंस करते हैं तो वापस से जो पानी की बूंदें आती है, दोज आर द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, दोज आर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी वेपोराइज होता है, वेपोराइज होने के बाद में उन वेपर्स को कंडेंस करके वापस से वो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ यू कलेक्ट दोज वाटर ड्रॉपलेट्स then that sample is called pure water, then sample is called pure water, right। तो जो सिर्फ एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके बना है उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर मैटर बोलेंगे, राइट। सो द रेन वाटर बिफोर कमिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में तो रेन वाटर के साथ कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है बिफोर कमिंग टू द एटमॉस्फेयर, राइट। और द डिस्टिल्ड वाटर इज कॉल्ड प्योर वाटर, राइट। बट द वाटर दैट वी यूज इन आवर जनरल लाइफ, राइट, जो वाटर हम यूज़ करते हैं हमारी लाइफ पे, दैट वाटर वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड, राइट, और ग्राउंड सोर्सेज, दैट दोज ग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ अनदर थिंग्स mixed into the water, right। we can say that the different ions, those are the fluoride ions are mixed into the water, right। हम बोल सकते हैं क्या, हम जितना भी पानी हम पीते हैं हमारे सामने आता है कि फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। इट मीन्स इफ द फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट, इट मीन्स वाटर मोलिक्यूल्स के साथ में फ्लोराइड के आयंस भी प्रेजेंट होंगे, राइट। इसका मतलब वो जो वाटर बना हुआ है वो सिर्फ वाटर मोलिक्यूल से नहीं बना हुआ है, वो उसमें तो फ्लोराइड के आयंस भी प्रेजेंट है, उसमें तो फ्लोराइड के आयंस भी प्रेजेंट है। एंड इफ यू आर ऑब्टेनिंग दैट वाटर फ्रॉम ग्राउंड, इट मीन्स द मिनरल्स आर ऑल्सो एडेड, minerals are also added। it means the water that we obtain from the surface or from the ground, underground water, then that water sample is not pure साइंटिफिकली। वो पानी क्या है, साइंटिफिकली प्योर नहीं है, क्योंकि हमको पता है जो पानी हम ले रहे हैं उसके अंदर तो बहुत सारे साल्ट्स मिक्स हो सकते हैं, उसके अंदर तो बहुत सारे आयंस मिक्स हो सकते हैं। पानी से हमको बहुत सारे आयंस, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। आप लोगों ने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा कि पानी के अंदर जो हम पानी पीते हैं उसमें हमको बहुत सारे आयंस, बहुत सारे मिनरल्स जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं वो मिलते हैं। फ्लोराइड आयंस आर वन ऑफ दैम। नाउ वी आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्लोराइड आयंस और एक्सेस फ्लोराइड आयंस in our water, right। and in order to control the TDS or the fluoride ions in our water sample, we have to purify the water sample nowadays। is it clear? पक्का। इसका मतलब ऐसी मैटर जिसमें सिर्फ उसी तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो और एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, वो तो होगा प्योर। जैसे प्योर का हमने एग्जांपल लिया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया या रेन वाटर हो गया, वो प्योर होगा। और बाकी का जितना भी वाटर जो हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ में यूज में लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर हम नहीं पीते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर वी आर नॉट यूजिंग इन आर डेली एक्टिविटीज़, राइट। जो भी डेली एक्टिविटीज़ में जो वाटर हम यूज में लेते हैं, दैट वाटर इज़ नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू द साइंस, दैट वाटर इज़ नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू द साइंस, बिकॉज it is having number of another substances mixed into it। those substances are atoms, ions or and salts, anything else। is it clear? तो हम जो पानी यूज में ले रहे हैं वो क्या है, प्योर नहीं है साइंटिफिकली। हमारे लिए तो प्योर है वो, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वो साइंटिफिकली प्योर नहीं है, राइट। एंड वी आर हैविंग नंबर ऑफ contaminations प्रेजेंट इन द वाटर, राइट। और वाटर जो इम्प्योर होता है उसको हम प्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम ROs लगाते हैं, राइट। RO प्लांट्स और स्मॉल RO डिवाइसेज आर इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स एंड द पर्पज ऑफ दैट RO इज टू गिव अस प्योर वाटर, इज टू गिव अस प्योर वाटर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा क्या, वो जो RO प्योर वाटर देता है वो प्योर वाटर हमारे लिए है, वो प्योर वाटर हमारे टर्म्स में प्योर वाटर देता है। इट मीन्स साइंटिफिकली दैट इज द इम्प्योर वाटर, बट फॉर आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सम मिनरल्स एंड आयंस आर रिक्वायर्ड, सो दैट वाटर कंटेन्स दोज आयंस एंड मिनरल्स, राइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक ब्रांड होता है कैंट RO, राइट। एंड वी बाय दैट कैंट RO फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, राइट। मतलब वो हमको वाटर प्योर करके देता है। एंड द टैग लाइन ऑफ कैंट RO इज वो विद एडेड मिनरल्स, विद एडेड मिनरल्स। इट मीन्स इसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स ऐड होते हैं। इफ द मिनरल्स आर एडेड, इट मीन्स अलोंग विद द वाटर मोलिक्यूल्स मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टू दैट वाटर सैंपल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कैंट RO, राइट। इट मीन्स साइंटिफिकली मिनरल्स आर एडेड इन टू द प्योर वाटर सैंपल, इट मीन्स that is impure scientifically, but whatever the minerals and ions present with the purified water, those ions and minerals are useful to our growth and development। that's why we are saying that pure। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पानी हम RO से पीते हैं वो पानी हमारे लिए प्योर होता है, ना कि साइंटिफिकली प्योर होता है। साइंस तो ये कहती है कि जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो होगा प्योर, राइट।
but that water that we obtained from the purifier, that water is impure scientifically, but that is pure for us because that completes all the requirements that we are having nowadays for our growth and development or for our metabolic properties. Is it clear? हमारे लिए वो प्योर है, साइंटिफिकली वो प्योर नहीं है, राइट. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, राइट. ऐसी मैटर जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसको हम बोलते हैं प्योर मैटर, राइट. और ऐसी मैटर जो एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट. देन दोज मैटर्स आर इम्प्योर, दोज मैटर्स आर इम्प्योर, राइट. इट मीन्स जो हम हमारे लिए प्योर कंसिडर कर रहे थे अब तक, आप लोगों के प्योर वाटर, दैट वाटर इज नॉट प्योर साइंटिफिकली. हमारे लिए प्योर है वो, हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए प्योर है, साइंटिफिकली वो क्या है, प्योर नहीं है. सो साइंटिफिकली हाउ कैन वी डिफाइन द प्योर एंड इम्प्योर मैटर? दोज मैटर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दोज आर प्योर मैटर्स. Otherwise the remaining all are impure matters, remaining all are impure matters. So in our general life most matters are impure in nature, impure in nature. जो हमारे लिए यूजफुल है वो मोस्टली क्या है, impure है. जो हमारे लिए हमारे लिए यूजफुल है वो मोस्टली क्या होती है, impure होती है. क्या होती है, impure होती है, राइट. impure means combination of two or more than two things. इट मीन्स इम्प्योर का मतलब है जो प्योर नहीं है, और प्योर नहीं है मतलब एक तरीके के पार्टिकल्स तो नहीं है, एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स हैं. और इसका मतलब एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स अगर उस मैटर में है, इसका मतलब वो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स है. सो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मिक्सचर. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड दैम एज मिक्सर. हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको मिक्सर भी कह सकते हैं. इज इट क्लियर? हम उसको क्या कह सकते हैं, मिक्सर भी कह सकते हैं, राइट. सो मिक्सर्स आर द substances or mixtures are the matter which are formed by the combination of two or more than two things, which are formed by the combination of two or more things, right. या फिर मैं इस थिंग्स का मतलब टू और मोर मैटर, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ टू और मोर एटम, टू और मोर आयन, टू और मोर मोलिक्यूल्स, राइट. सो दोज आर कॉल्ड मिक्सर, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग दैट in this a type of particles are there, if you mix b type of particles into it, then the resultant entity will have a plus b type of molecules, right. Resultant molecules will have a plus b, right. So this is what, mixer. This is what, mixer. Now the mixing of these two type of substances, that mixing can be in the two types, right. पहला ये जो माना कि हमने ए तरीके के पार्टिकल्स है, उसके साथ में बी तरीके के पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा. ये मिक्सिंग भी दो तरीके की हो सकती है, या तो ये ए और बी कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, दूसरा क्या, ये ए और बी कम्प्लीटली मिक्स ना हो, या तो ये ए और बी एक दूसरे के साथ में कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, या फिर ये कम्प्लीटली मिक्स ना हो. सो डिपेंडिंग ऑन टू द मिक्सिंग, द मिक्सर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू मैन टाइप्स, एंड दीज टू मैन टाइप्स आर व्हाट, these are classified as homogeneous and heterogeneous mixers. Homogeneous and heterogeneous mixers. We discussed about the homogeneous and heterogeneous mixers in the first chapter, right. Whenever we discussed about the types of matter, at that time we discussed about the homogeneous and heterogeneous mixers. So you all have an idea about homogeneous and heterogeneous mixers, right. So homogeneous mixers are those mixers in which the concentration of all the substances which are present into the mixture, that concentration remains same, concentration remains same, right. Or in another way, how can we define that, the mixers which are uniformly distributed, जो uniformly distributed होते हैं, हर जगह पे सेम रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, homogeneous mixer रहते बोलते हैं. या फिर the mixers which are uniformly distributed throughout the mixture are called homogeneous mixers, or the mixers which are having the same concentration throughout the mixture, that is called homogeneous mixer. While the mixers which are not uniformly distributed, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सर्स. जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सर्स, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं टी, राइट, दैट टी इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, राइट. उसमें मिल्क भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, अदरक भी हो सकता है, इलायची भी हो सकती है, तुलसी पत्ता भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, राइट. सो द नंबर ऑफ सब्सटेंसेज आर देयर विच कैन बी एडेड इनटू द टी, बट एवरी cup of tea
कंटेंट्स देयर प्रेजेंट्स एवरीवेयर, मतलब हमारे पास अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय के अंदर हमने जो जो सब्सटेंसेस डाले हैं हर एक कप के अंदर वो सारे के सारा टेस्ट प्रेजेंट रहेगा या उनका प्रेजेंस प्रेजेंट रहेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो टी को बनाने वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो दैट टी इज वॉट? होमोजीनियस मिक्सर। इफ यू आर मिक्सिंग साल्ट इनटू द फ्लोर, राइट, अगर हम आटे के अंदर नमक मिलाते हैं तो नमक को एक जगह मिलाते हैं तो भी वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम एक बाइट खा रहे हैं वो तो है ना जो बिना नमक की आ रही है और अगली बाइट है ना जो एक्सेस नमक की आ रही है। इट मीन्स द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, सो दैट salt mixed into the flour, that is also which kind of mixture? That is also homogeneous mixture. That is also homogeneous mixture, right? If you are considering any juice, or नींबू पानी, राइट, अगर हम नींबू पानी है तो नींबू पानी में हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, वन कंपोनेंट, चीनी मिक्स करते हैं, अनदर कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट? लेमन ड्रॉप्स वी हैव एडेड, इट मीन्स थर्ड कंपोनेंट। इट मीन्स है तो मिक्सर, साइंटिफिकली क्या है? मिक्सर है। लेकिन ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, चीनी, पानी और जो लेमन ड्रॉप्स हैं वो सारी की सारी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नींबू की बूंदी ऊपर ऊपर रहती है या बीच में रहती है या चीनी नीचे नीचे रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वी have same taste throughout the mixer, right? So such kind of mixers in which the components are uniformly distributed, those are called homogeneous mixers, while the heterogeneous mixers are those mixers in which the components are not uniformly distributed. For example, mixture नमकीन अगर हम consider करते हैं, जो the mixture नमकीन does not have the fixed composition of the different particles present into it, right? मतलब अगर हम मिक्सर नमकीन कंसिडर करते हैं तो मिक्सर नमकीन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जब हम खोलते हैं तो बड़े बड़े पार्ट्स पहले निकलते हैं, उसके बाद में जो छोटे छोटे पार्ट्स वो बाद में रह जाते हैं। या फिर अगर हम उसमें ग्राउंड नट्स कंसिडर करें तो ग्राउंड नट्स निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। या हम कोई नमकीन कंसिडर करते हैं उसमें किशमिश निकल भी सकती है, नहीं निकल सकती, बट देयर इज़ नॉट अ फिक्स्ड पैटर्न, राइट। सो सच काइंड ऑफ मिक्सर्स आर कॉल्ड heterogeneous mixers. Okay, if we add some sand into the water, and left it undisturbed for some time, that what happens? The sand particles settle down into the bottom. It means ऊपर की साइड तो वाटर के मोलिक्यूल्स है, दूसरे जो सैंड के पार्टिकल्स वो नीचे आ जाएंगे। अगर हम ऊपर की साइड से पानी लेते हैं तो उसमें सैंड पार्टिकल्स कम आएंगे, नीचे की साइड से सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे। इट मीन्स द सैंड एंड वाटर मोलिक्यूल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली distributed. It means which kind of mixer is this? This is heterogeneous mixer. Which kind of mixer? Heterogeneous mixer. If we consider any juice or the shake, अगर हम कोई सा भी शेक जूस कंसिडर करते हैं, देन व्हाट इज हैपन? शेक मीन्स जूस के अंदर जब हम एडिटिव्स मिला देते हैं और एडिशनल सब्सटेंसेस मिला देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेक बोलते हैं, राइट। इफ शेक इज देयर, और इफ वी कंसिडर द पपाया शेक, in which the number of different substances that are cherry etc are mixed into it, and if we left that that papaya shake undisturbed for some time, at that time all those additional substances are settled down into the bottom, right? You can observe it, right? It means the concentration of all those substances are not same throughout the shake juice, right, or throughout the papaya shake. It means papaya shake में या पपीता शेक के अंदर जितने भी substances हम डालते हैं वो सारे के सारे substances क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में वो नीचे की टाइम सेटल डाउन हो जाते हैं, ऊपर जूस रह जाता है, नीचे की साइड सारे के सारे सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कौन से टाइप के मिक्सर होते हैं? heterogeneous मिक्सर्स होते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन टू द मिक्सिंग, द mixers are classified into the homogeneous and heterogeneous mixers, right? Homogeneous mixers are those in which the components are homogeneously or components are uniformly distributed throughout the mixer. Those are called homogeneous mixers. And the substances in which the all components are not uniformly distributed, those mixers are called heterogeneous mixers, right? So I hope that you have understood the concept of pure and impure, right? Pure and impure, and you have understood the concept of homogeneous and heterogeneous mixers. So you should try to understand it, right? So keep studying, keep learning, stay at your home, be safe, protect your family, and enjoy the melody of life. Thank you.